إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام الرحمن کے بارے میں حسب مقدور بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ذاتی نام کے بعد سب سے پہلے جو نام قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوا ہے وہ ہے الرحمن، کیونکہ یہ جو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں ایک تو اللہ کا ذاتی نام بار بار استعمال ہوتا ہے شروع میں، اور اس کے بعد رحمان اور پھر رحیم۔ سورہ توبہ کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سورہ نمل کے درمیان میں بھی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ رحمان مبالغہ کا لفظ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی رحمت والا نہیں، یعنی کہ بے انتہا رحمت والا رب اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، وسیع رحمت والا اللہ عرش پہ مستوی ہے یا عرش پہ مستوی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ کے بندے زمین پہ نرمی سے آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان کا خطاب، ان کا آمنا سامنا، ان کا ملن ملاقات کسی جاہل سے ہوتی ہے یا جاہلوں سے ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، ہم تمہارے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ کہیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے، ہمارے مرکز جو ہیں ان سے کس نے اٹھا لیا، ہم تو آرام سے سوئے تھے، کچھ تو صدیوں پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے، سبھی اس دن کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو یہ وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا۔ یہاں بھی لفظ رحمان استعمال ہوا ہے کہ اس وسیع رحمت والے نے اس کا وعدہ کیا تھا کہ تمہاری دنیا کی ہی زندگی ہی نہیں ہے بلکہ تمہیں ایک دوسری زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور یہی بات مرسلین یعنی کہ جو رسول ہیں، مرسلون رسول ہیں، انہوں نے تمہیں کہی تھی کہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور جو نبیوں کی، رسولوں کی سچی باتیں تھیں اس ضمن میں کہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد تمہارا حساب ہوگا، اور پھر تمہاری دو منزلیں ہوں گی آگے الگ الگ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمبر 55 سورہ الرحمن اسی نام کے اوپر رکھی، اسی صفاتی نام کے اوپر رکھی۔ فرمایا الرحمن،
वसी रहमत वाले रहमान ने अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान, इंसान को तख्लीक किया, अल्लमाहुल बयान, उसको बात करनी सिखाई। तो लिहाजा रहमान सबसे वसी रहमत वाला, और अल्लाह की सिफ़ात में अल्लाह का गज़ब भी है, लेकिन उसका गज़ब उसकी रहमत के महतात है। अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पे हावी है, इसलिए तो उसकी रहमत की बिना पर ये कायनात अभी तक मौजूद है। अगर अल्लाह का गज़ब उसकी रहमत पे हावी होता तो ये कब की ख़त्म हो चुकी होती। लिहाजा हम बिस्मिल्लाह कहेंगे तो 3 नाम लेंगे अल्लाह तबारक व तआला के। उसका ज़ाती नाम अल्लाह, रहमान बहुत रहमत वाला, रहीम बहुत रहम करने वाला। अल्लाह से बढ़कर किसी की रहमत नहीं, उससे बढ़कर कोई रहमान नहीं। लिहाजा हर काम को शुरू करने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा जाता है, जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है, काम में बरकत होती है। और इसी आयत के वसीले से हम पाक परवरदिगार के 3 नाम ले पाते हैं एक ही आयत में, एक उसका ज़ाती नाम, 2 उसके सिफ़ाती नाम। तो आज दूसरा दिन है और अल्लाह के सिफ़ाती नामों का पहला दिन है, क्योंकि अल्लाह के बाद जो सबसे पहले नाम कुरान में जिसका सबूत है वो रहमान ही है, और फिर उसके बाद रहीम आता है। तो वो बहुत रहमत वाला है, लेकिन हमें रहमत का फ़ायदा उठाना है, उसकी रहमत से मुस्तफ़ीद होना है, उसके गज़ब की ज़द में नहीं आना, क्योंकि वो सरकशों को पसंद नहीं करता। वो उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो कि उसके आगे झुकते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, उससे दुआ करते हैं। दुआ इबादत है। सूरह सबसे पहली जो सूरह फातिहा है, उम्मुल किताब है या फातिहतुल किताब है। इसमें 7 आयतें हैं और शुरू में 3 आयतें या 3+ आयतें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना है, उसकी बड़ाई है। और उसके बाद आगे वाली जो आधी सूरत है वो दुआ है। दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआ के बगैर इबादत मुकम्मल नहीं। अगर हम आधी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सिर्फ़ उसकी हम्द व सना करेंगे, आधी नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी नमाज या हमारी इबादत मुकम्मल नहीं। लिहाजा सूरह फातिहा ये जो शुरू से आखिर तक वलद्दालीन तक हर नमाज की हर रकात में पढ़ना फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो लिहाजा अगर हर रोज़ हम सूरह फातिहा का विरद करते जाएं, नमाज में अगर हम 17 रकातें ही पढ़ते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज जो है वो 24 घंटों में एक दिन में 17 रकातें बनती हैं, प्लस सुन्नन और जो नवाफिल हैं या वाजिबात हैं वो अलग हैं। लेकिन कम से कम 17 बार तो हर रोज़ हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना नसीब होती है। जो लोग 5 वक़्त नमाज के पाबंद हैं, हर ईमान वाले पर जो आकिल और बालिग है उस पर नमाज फ़र्ज़ है। लिहाजा उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदे की बात है कि वो हर रोज़ में कम से कम 17 बार तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, और उससे ज़्यादा जिसको जितना नसीब हो। तो लिहाजा अर्रहमान जो है, आज ये दूसरा दिन था और अल्लाह पाक के इस सिफ़ाती नाम का पहला दिन था। हमें उसकी रहमत से फ़ायदा उठाना है, कहीं हम उसके गज़ब में ना आ जाएं। जो अल्लाह के गज़ब में आएगा उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, क्योंकि अमल ही से ही कामयाबी है, सिर्फ बातें करने से कामयाबी नहीं। हमारी अगर 5 वक़्त की नमाज वक़्त पे कायम हो जाती है तो फिर वो कभी छूटेगी नहीं।
ज़िंदगी में हम कहीं भी जाएंगे, अगर इशारे से पढ़नी भी पड़ेगी तब भी हम पढ़ेंगे। इशारे से पढ़ने का मानी ये भी है कि जब इंसान कहीं बीमार हो जाता है, वो ना तो क़याम कर सकता है, ना रुकू कर सकता है, ना सजदा कर सकता है, ना बैठ ही सकता है। ऐसी बीमारी भी हो जाती है कि इंसान करवट में लेट भी नहीं सकता। अल्लाह की गज़ब से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसानों के गुनाहों पर उनका मुहासबा करना लगे, उनको सज़ा देने लगे, तो फिर तौबा ही भली। लिहाजा वो उसकी रहमत ही है कि हम इतनी सरकशी, इतनी नाफरमानी करने के बावजूद भी हम ठीक ठाक हैं, हम बातें करते हैं, हम हंसते हैं, हम एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। लेकिन हम उस लम्हे को भूल जाते हैं कि जो लम्हा या जो लम्हात बहुत ही दर्दनाक होंगे, और वो उन लम्हात से हर एक को वास्ता पड़ता है, हर एक जी रूह को वास्ता पड़ता है। लिहाजा एक बार फिर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सभी औलाद आदम को, मैं औलाद आदम के लिए दुआ करूँगा, क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती पर रहने बसने वाले इंसान, चाहे कोई एथियस्ट क्यों नहीं, वो अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानता, वो भी उसका बंदा है, वो भी उसकी दी हुई नेमात से मुस्तफ़ीद होकर ज़िंदगी गुजार रहा है। हो सकता है उसको समझ आ जाए, और बहुत सारों को समझ आ भी जाती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे एथियस्ट जो हैं वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमने अल्लाह को कभी माना ही नहीं, हमने तो यही सोचा था कि ये कायनात, ये ज़मीन व आसमान ये खुद ही बन गए हैं। लेकिन वो अल्लाह ने उनको हिदायत दी और वो सीधे रास्ते पर आ गए, उन्होंने तौबा की, और अब वो सच्चे बंदे हैं, अल्लाह के उसकी इबादत करते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं। तो लिहाजा मेरी दुआ तमाम बनी आदम के लिए है। आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा की औलाद हैं दुनिया के जितने लोग भी हैं, चाहे वो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाला है, चाहे वो लामज़हब या एथियस्ट क्यों नहीं है, वो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी तो है। तो मेरी फिर दुआ होगी कि अल्लाह से सही रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।